A very good evening to all the lovers of literature present here on behalf of Suneet Tandon at Taj Swarna Amritsar on 19th of December 2019. I welcome you all to the third edition of Kalam. Kalam is an initiative of Prabha Khetan Foundation, a Kolkata-based NGO engaged in various social welfare activities and promotion of Indian culture. Kalam was started in the summer of 2015 in Jaipur, primarily as a session of conversations with selected authors covering his or her entire range of works as opposed to a book launch or a book read. Almost from the first session, the series gained immediate acceptance from the audience, and of course, the featured authors really encouraged us to keep the sessions going. The series was then extended to other cities of India: Raipur, Bilaspur, Udaipur, Jodhpur, Hyderabad, Bengaluru, Ajmer, Mumbai, Patna, Pune, Chandigarh, and London as well. Now it's part of Amritsar. We are now on to the third edition. It's my honor and privilege to welcome the talented guest of today, Kalam chapter, Deepak Ramola. Deepak Ramola, a young actor, lyricist, teacher, and founder of artistic director of Project Fuel, FUEL. The acronym goes for Forwarding the Understanding of Everyday Life Lessons. Organization collects life lessons from people of all ages and backgrounds around the world. And he says his mother lessons were the start point in his life. He studied at National School of Drama, has been a lyricist in movies, to name them Das Dev, Dear Dad, Wazir, Mountain Man, Monsoon Shootout, and Manji, of course, was his first one. He's also done a cameo for Salman Khan in Bodyguard. That's one of the feathers in his thinking hat. इसी लाइफ में ससुराल सिमर का ये सारे टीवी के शोज हैं जिनके नाम हमें जाने पहचाने हैं. He says he's taught 40,000 so far. अरे इतने तो जिंदगी में मैंने भी नहीं पढ़ाए. और फिर एक बुक भी है. इतना तो मैं समझ गया हूँ. आज उसी के साथ हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे. And in conversation with him is a very young, beautiful girl, Akanksha Kapoor Arora, with a degree in fashion communication, a literary enthusiast, a specialized celebrity stylist in Bollywood for 5 years. She says she has styled 35 celebrities. To name a few: Parineeti Chopra, Shilpa Shetty, Sonakshi Sinha. Wow to you. हम सवाल ना करें और सब सवाल आखिर के लिए बचा के रखें. और मैं इनवाइट करूंगी Apra Kuchal, the honorary convener of Prabha Khetan Foundation, to please come and talk about the modus operandi of Kalam. Apra. Thank you so very much. A very good evening to one and all present here. It's a pleasure to be here in your beautiful city, Amritsar.
Hi, Deepak, and we're looking forward. Okay, so to run you down through our do's and don'ts, for Kalam, we invite audience on a rotation basis. So if you're a friend, a good friend, a best friend, or more than a friend, it's okay if you do not receive invites for consecutive events. Because it's on a rotation basis and we need to cover everybody. So we don't mean to be rude, but this is our procedure. Once you receive the save the date, please be kind and prompt to say either a yes or a no. We really do not understand the language of emojis. A thumbs up or thank you or a smiley, we really cannot comprehend. I mean it. So if you say a thumbs up and you say, oh, how come my name was not in the list? Because we only understand a yes or a no. Once you've said a yes to our save the date, in few days you will receive a formal video e-invite, which means that we look forward to having you over for our event. One day prior to the event, you will receive see you tomorrow, which means that again, this is just a reminder and we are looking forward to having you for our event. Please make sure that the invite is valid for only one person to whom that message has been sent. So a friend getting tagged along or you getting along, getting tagged with another friend, we don't mean to be rude, but yes, we really do not encourage that. Please see that the invite is non-transferable. So in case if you're not coming or anybody else from your family is coming or wants to come, you need to ask or inform the organizers. Please reach on time on the day of the event. I know it is a little struggle in many cities of our country for reaching on time, but we all must take this responsibility. And here in Amritsar, you can do it. The way I see enthusiasm in everybody's eyes, I think reaching on time is a very good practice. We can pass it on to our coming generations. So, the first 30 minutes is tea. It's followed by an introductory session, which is just happening like this, followed by a 40 to 45 minutes of conversation, 15 minutes of Q&A, and then book signing. Guests whose names are there on the guest list only get a copy. Again, we don't mean to be rude, but this is the way it actually happens. One book per family. If you're a husband or a wife, or if you're a mother-in-law or a daughter-in-law, and if you're from the same family, please be kind and honest enough to pick up one book. Also, we do notice people not turning on time. We do notice people who say a yes and do not turn up for the events. We really appreciate you taking out time for our Kalam events, but also we request you to follow our standards and the procedures, because this is what we've been doing in more than 30 cities now, including Oxford, Birmingham, London. So we really, really appreciate your time, but at the same time also request you to help us follow our, do's and don'ts. If for 3 events you don't turn up after confirming, we simply strike off your name from our guest list. And we are very, very open and we're very sure about the whole thing. Also, in case if you want to recommend or if you have some friends who want to attend, so the Ehsaas women of Amritsar are there. You may give their names or the telephone numbers and please suggest more friends because we want to reach out to more and more people. So today is the 3rd session of Kalam. Yesterday we had the 1st session of Aakhar. Aakhar is an initiative of Prabha Khaitan Foundation to promote regional languages. And it started at Maja House yesterday. So in case if you're keen on the Punjabi literature and Punjabi language, please give in your names to the Ehsaas women. They are all here. Thank you very much. Sorry, also please
keep your phones on silent mode or just turn them off, because it's very, very important, and it's a little respect to the author and the conversationalist who are sitting here. Also, please ensure that you do not walk out of an event before it gets over. It is absolutely unrespectful. Also, as one of our awareness programs, we are saying no to plastic, say no to plastic bottles also. So in our endeavor, in case if you could be a part of it, we will really, really appreciate it. Thank you so much. To take the session forward, I would like to welcome Deepak and Akanksha on the dais. नमस्कार। जैसे कि जसमीत जी ने कहा, आज हमारे बीच एक बहुत बहुमूल्य व्यक्ति, दैट इज वर्सेटाइल ह्यूमन बीइंग इज प्रेजेंट। बचपन में हमें कहा जाता था कि हर कोई कवि या कोई कविता, कोई निबंध, कोई प्ले शुरू करने से पहले किसी ऑथर का या किसी कवि का कोई पंक्तियां बोलनी चाहिए। दीपक जी, क्या हम आज का कार्यक्रम आपकी किसी कविता से शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको, और बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, कोहरे को छानते हुए आप आए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये शाम हम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो आकांक्षा जी, आप का तो मुझे नहीं पता, बट इतना खूबसूरत परिचय सुनकर जो है इंसान थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसमें जी आपका। मैं सोच रहा था कि किस चीज़ से, किस नज़्म से शुरू करूं, और बहुत सारी जो है नज़में जहन से गुजरी, और जो एक एक्ट लगी वो कुछ इस तरह है कि वो लम्हा जो तुमने दे दिया किसी को, वो न लौटेगा तुम्हारे बुलाने से न मेरे चाहने से। वो लम्हा जो तुमने दे दिया किसी को, वो न लौटेगा तुम्हारे बुलाने से न मेरे चाहने से। वक्त की कलम से कितना कुछ लिख गया है, वो या तो खो गया है या बिक गया है, वो लम्हा जो तुमने दे दिया किसी को। देखिए, इसमें वक्त और कलम दोनों आते हैं, तो मैंने बड़ी समझदारी से बात निभा ली है। वक्त आपका और कलम हम सबकी। वो लम्हा चाहता तो दूरियां मिटा सकता था, एहसास ना सही कम से कम आरज़ू जगा सकता था। खैर जो उसकी फितरत थी उसमें शरारत थी, हाथों से फिसल जाना वक्त की पुरानी आदत थी। वो रूठा भी नहीं था जो मान जाता तेरे या मेरे मनाने से। वो लम्हा जो तुमने दे दिया किसी को, वो न लौटेगा तुम्हारे बुलाने से न मेरे चाहने से। यकीन मानो वो लम्हा यकीनन जख्म बन जाएगा, रह रह के याद आएगा, लाएगा हंसी होठों पे तो आंखों में आंसू भी लाएगा। वो लम्हा यकीनन याद बन जाएगा। तुम कहते हो तुमने दे दिया, पर जिसको दिया उसके पास अब तक नहीं पहुंचा। वो कहता है उसने वापस कर दिया, पर वो लम्हा मेरा अब तक घर नहीं लौटा। मैं जानता हूं वो लम्हा ठहरा हुआ है हम दोनों के बीच बहाने से। वो लम्हा जो तुमने दे दिया किसी को, वो न लौटेगा तुम्हारे बुलाने से न मेरे चाहने से। वो एक लम्हा। जैसे मैंने कहा, बहुमूल्य व्यक्ति। दीपक जी की एक खासियत है कि हमारे 7.42 बिलियन पॉपुलेशन में से वो शिक्षक he likes to collect lessons from people. I think आपकी मम्मी को बचपन में ये पता था कि आप बड़े होके एक बहुत पॉजिटिव सोल बनने वाले हैं, इसलिए शायद इनका नाम भी दीपक है। तो दीपक जी, हमें प्रोजेक्ट फ्यूल के बारे में कुछ बताइए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी, प्रोजेक्ट फ्यूल जो परियोजना है, संस्था है जिसे मैं चलाता हूँ 17 साल की उम्र से। मेरी मदर जो है, उन्हें 5वीं कक्षा में उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी दादी थी, उन्होंने निकाल दिया स्कूल से ये कहकर कि घर की कोई भी लड़की लड़कों के साथ स्कूल नहीं पढ़ेगी। और क्योंकि मेरी मदर जो 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो इस बात का सीधा जो परिणाम था वो उन्हें झेलना पड़ा, और कभी स्कूल नहीं गई उसके बाद। पर जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी मदर कभी स्कूल नहीं गई। अगर आप उनसे मिलें तो अच्छी अच्छी डिग्री वाले उनके सामने फेल हैं, जिनमें मेरे पिताजी जो हैं सर्वप्रथम श्रेणी में आते हैं। क्योंकि जब भी दोनों के बीच कहा सुनी होती है, मेरी मदर के आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज द विनिंग पॉइंट इन द हाउस।
So she is humorous, she is thoughtful, she is a great listener. और बड़े होते हुए करीबन 14 साल की उम्र तक मुझे कभी इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि माय मदर हैज नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि मुझे लगा कि स्कूल में भी तो यही पढ़ाते हैं। पिताजी लाकर अपनी तनख्वाह उनके हाथ में देते हैं। जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी वो बिना मैथ्स समझे कैसे घर के फाइनेंसेस संभाले, जिसने वर्ल्ड लिटरेचर नहीं पढ़ा वो इतनी खूबसूरत फिलोसफीज कैसे बांटता है। एंड व्हेन आई वेंट टू माय मदर एट एज 14, मैंने उनसे एक दिन बड़े कॉन्फ्रंटेशनल तरीके में पूछा कि आप झूठ कहती हैं कि आप स्कूल नहीं गई हैं, क्योंकि स्कूल में भी यही पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि मैं स्कूल नहीं गई, ये सच है, क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी क्लासरूम है और जो भी मुझे जिंदगी सिखाती है मैं बहुत प्यार से सीखती हूँ और अपने बच्चों को बड़ा करती हूँ। इस बात का मुझ पे काफी असर हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये सिर्फ जिंदगी से सीख रही हैं, इसका मतलब हर इंसान जो जी रहा है वो कुछ सीख रहा है, और ये कहाँ मिलेगा। तो मेरा सबसे पहला जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि आई वेंट टू गूगल द मास्टर ऑफ ऑल एंड आई टाइप्ड ग्रैंडमदर्स लाइफ लेसन, और कुछ नहीं आया। फिर मैंने टाइप किया बेस्ट फ्रेंड्स लाइफ लेसन, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे उनका नाम डाला। मुझे लगा शायद मशहूर नहीं है इसलिए शायद नहीं आ रहा। तो हमारी जान पहचान में एक कर्नल साहब थे जिनका नाम अखबार में कई बार आता था, तो उनका नाम डाला, फिर कुछ नहीं आया। और ऐसा करते 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 मुझे ये रियलाइज हुआ कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनको कभी भी अगर अखबार में नाम ना आए, या अगर आप ब्रेकिंग न्यूज या हेडलाइन ना बने, या सीईओ ना बने किसी कंपनी के, तो उनके जीवन की शिक्षाएं कभी इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगी। और इस बात से मुझे जो है बहुत एक तरीके से आई वाज वेरी अनसेटल्ड। तो मैंने 14 साल की उम्र से लोगों के जीवन की शिक्षाएं इकट्ठा करना शुरू किया और 17 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया। हालांकि जैसे कि आज कह रही थी मैम में आया कि आप तो बहुत छोटे लगते हैं। सोचिए आज 28 में मैं छोटा लगता हूँ, तो 17 में तो लोग मुझे कहते होंगे कि आप कल ही पैदा तो नहीं हुए हैं। तो जब मैं 17 साल की उम्र में पढ़ाने जाता था यूनिवर्सिटी में, तो एक किस्सा मुझे याद आता है आकांक्षा, कि मैं हरियाणा में पढ़ा रहा था और इंजीनियरिंग कॉलेज था। सारी बात जो है वो ईमेल पे हुई। तो मिस्टर अमोला, वेरी प्लीज टू हैव योर इन्विटेशन, मिस्टर अमोला वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू। जब मैं वहाँ पहुंचा एक रात पहले अपनी क्लास के, तो जो स्कूल के डायरेक्टर थे, कॉलेज के डायरेक्टर थे, वो मेरे गेस्ट हाउस के बाहर आए और उन्होंने बार बार अंदर झांक के कमरे की तरफ देखा और कहा कि पिताजी अंदर है क्या। तो मैंने कहा वो आ रहे थे, उन्होंने बताया नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा आप उनके साथ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो अकेले ट्रैवल करता हूँ। तो आपने उनसे सीखा होगा। मैंने कहा नहीं। तो सडनली वो एक दो पल के लिए भौचके लगे, कहते हैं आप ही दीपक रमोला हैं जिनसे हम ईमेल पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। और बड़ी गहरी सांस उन्होंने ली। उन्होंने कहा चलिए आप आराम से सो जाइए, कल सुबह मिलते हैं। जब कल सुबह उनके ऑफिस में मैं गया अगली सुबह, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक बहुत अच्छा जो है उपाय ढूंढ लिया है। तो मैंने कहा सर किस चीज का उपाय। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप जो हैं, यू आर, माय क्लास स्टूडेंट्स आर डबल योर साइज एंड ट्रिपल योर हाइट, एंड इफ दे डोंट लाइक यू दे विल रिप यू अपार्ट। तो आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट एट 17 and a half। आप क्यों ना ऐसा करें कि आप मेरे ऑफिस में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें और हम बोल देंगे कि ही वाज नॉट फीलिंग वेल या जो भी है। तो मैंने अपनी क्लास के 2 घंटे में से 45 मिनट सिर्फ उन्हें कन्विंस करने में लगाया कि नहीं, आई एम ओके टू गो इनटू द क्लास। तो जब मैं पहली मतलब दफा क्लास में पहुंचा, तो सब बच्चे जो हैं अच्छे खासे हट्टे कट्टे सब बैठे थे, हरियाणवी। आपसे बड़े थे? बिल्कुल, इंजीनियरिंग कर रहे थे। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और वो शायद 4th ईयर में थे। और मैंने आते ही कहा, मैंने कहा मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, आपके प्रिंसिपल डायरेक्टर जो है उन्होंने इतना डरा दिया है। तो कहीं पीछे से एक आवाज आई, एक लड़का मुझे कहता है अरे आवाज पतली है पर कोई ना काम चला लेंगे। और उस दिन से लेकर आज तक किसी भी कमरे में मुझे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंसान जो है वो उनका बड़ा खूबसूरत, शायद किशन चंद्र जी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि जो लोग लफ्जों से प्यार करते हैं बहुत दुख उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप उस दुख को पिरोकर शब्दों में, नज़मों में ढालकर परोसते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर एक हिम्मत मिलती है जो आपको ऐसी महफिलों में जुड़ने की क्षमता देती है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रोजेक्ट फ्यूल और वो जर्नी और आज यहाँ कलम अमृतसर तक आने का सफ़र जो है वो कहीं ना कहीं उन कहानियों से होकर गुजरता है जिनको मैंने सुना, पढ़ा
और आप 40,000 पर जसमीत जी शॉक हो रही थी, आप विश्वास नहीं करेंगे वो नंबर पुराना है, अब 4 लाख हो गया है, तो एक जीरो जो है वो बढ़ गया है। मुझे लगता है मुझे मेरी अपनी टीम को बताना पड़ेगा अपडेट करने के लिए, क्योंकि करीबन 8 साल पहले 40,000 था और करीबन जून के महीने में 4 लाख लोगों को करीबन दुनिया के 22 देशों में पढ़ाने का सौभाग्य और सीखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो उन्हीं सब किस्सों कहानियों को मैं ऐसी किताबों में अपनी नज़्मों में पिरोता रहता हूँ। जी। ये जुटाना आपका शौक है जी। ऐसा कोई सबक जो आपको इंस्पायर करता था, आपको एक बेटर इंसान बनाने में हेल्प किया हो? जिसमें बहुत सारे हैं, जिसमें एक मुझे खास तौर पे याद आता है। अभी परसों मतलब गढ़वाली जो मेरे मातृभूमि है, जिस रीजन की है, वहाँ गढ़वाली डायलेक्ट जो है उस भाषा को का इस्तेमाल होता है, बोली का इस्तेमाल होता है। तो उसमें 4 महीने पहले को भी परसों ही कहते हैं। तो सितंबर के महीने में बेल्जियम में एंटवर्प शहर में मैं पढ़ा रहा था और एक 6 साल के बच्चे से मैंने पूछा, जिंदगी ने आपको क्या सिखाया है? और उसने बिना वक्त लिए मुझसे कहा, बिफोर यू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, लर्न वेयर द ब्रेक्स आर। 6 साल के बच्चे की सीख। और सबसे खूबसूरत बात इस सफर में 10 साल पढ़ाने की यही रही है कि हम सोचते हैं विवेक, विजडम उम्र के साथ आता है, और मैंने 10 सालों में इन 4 लाख लोगों में सबसे बड़ी चीज यही सीखी है कि इट्स द बिगेस्ट मिथ। एक 5 साल की लड़की ने मदर टेरेसा के एनजीओ आशादान में मुझसे करीबन 6 साल पहले कहा था, माई लाइफ लेसन इज व्हेन यू आर डन यूजिंग द जार, रिमेंबर टू क्लोज द लिड। मुझे लगता है कि वो विवेक जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आप ये कह के डिस्काउंट नहीं कर सकते कि ये 5 साल की लड़की से आया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे जितने लोगों से ये सवाल पूछेंगे, घर के डिनर टेबल पर भी आप अपने परिवार वालों से ये सवाल पूछें कि सोचो आप 20 के हैं, आप 15 के हैं, आप 75 के हैं, जिंदगी ने आपको अब तक क्या सिखाया है? आप यकीन मानिए, यू विल बी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड हाउ पीपल कंडेंस देयर एंटायर लाइफ एंड पुट इट इन अ स्टेटमेंट। जो लाइफ लेसन आज कल मेरे जहन में घूम रहा है, वो भी बेल्जियम से आया है। एक इंसान ने मुझसे कहा, मेरा लाइफ लेसन है स्टॉप एट द रेड लाइट, लाल बत्ती पे सिग्नल पे रुकें। तो मैंने पहले सुन के तो कहा बड़ा मतलब हल्का सा लाइफ लेसन है कि आप कह रहे हैं ट्रैफिक में रुकें। पर उन्होंने फिर मुझे उसकी बात की गहराई समझाई कि देखिए, जो इंसान लाल बत्ती पे बिना एंग्शियस हुए नहीं रुक सकता, उसकी जिंदगी में कितनी हलचल है। वो न वक्त से उठा होगा, न वक्त पे पहुंचेगा। वो उसी हलचल के साथ घर से निकला और उसी हलचल के साथ कहीं उतरेगा या निकलेगा। और जब आप किसी लाल बत्ती पर बिना घबराहट के, बिना हिचकिचाहट के हरी होने का इंतजार करते हैं, इसका मतलब कि आपकी जिंदगी बड़ी कंट्रोल में चल रही है और आप दुनिया को भागते हुए, दुनिया को दौड़ते हुए बड़ी तसल्ली से देख सकते हैं। So he said, even stopping at a red light is an act of meditation, because that is life giving you a moment to pause without you controlling it. Nice, very nice. आपकी इस बुक में एक कविता है, मुंबई। जी। क्या ये उसी पे आधारित है? मुंबई तो एक्चुअली दरअसल 9 साल में वहां रहा, और जब भी, क्योंकि इतनी फ्लाइट्स लेता था, तो जब भी उठकर शहर ऊपर से देखता था तो वो नजर आता था। आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूँ और आपको शायद ढूंढने में मेरी मदद करनी पड़े। पर मुंबई शहर की अपनी खूबसूरती है, और वो खूबसूरती इस बात को बयां करती है कि आप कितनी भी जल्दबाजी में हो, वो शहर आपको थामने की कोशिश करता है। तो कविता कुछ इस तरीके से है कि ये धुंध सा जो शहर है, ये धुंध सा जो शहर है, जो आज है जो कल नहीं, ये धुंध सा जो शहर है, जो आज है जो कल नहीं, ये शहर जिसमें वक्त है फंसा हुआ, जिसके रास्तों की खाई में आदमी बेवजह है धंसा हुआ, ये शहर जिसमें होकर लगता है इसके चुंगल से बचना मुश्किल है, ये शहर जिसमें कारवां नहीं बस काफिर है।
मुसाफिर बनकर इस शहर से अगर जरा ऊपर उठा जाए तो देखने को मिलता है एक दिलचस्प नजारा। ये शहर भागता दौड़ता शहर बेजान इमारतों से गुजरते हुए पानी और पहाड़ों के मलबे में तब्दील हो जाता है। अगर आप कभी फ्लाइट से देखें किसी सिटी को, स्पेशली मुंबई जैसी सिटी को, तो आपको ये नज़ारा नजर आएगा कि ये बेजान इमारतों से गुजरते हुए पानी और पहाड़ों के मलबों में तब्दील हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे समंदर के नीचे समा गया हो, खोखले इतिहास का ताजा मजबूत हिस्सा हो। इस समंदर में समाये शहर से जब बादल की लहरें गुजरती हैं तो यकीन होता है ये शहर खुद उभरने की कोशिश कर रहा है और इसी जद्दोजहद में हर आदमी की बाहें पकड़ उसे खींच रहा है। इसीलिए शहर उभर रहा है, आदमी डूब रहे हैं। दीपक जी, आपकी ये पोएट्री की जर्नी शुरू कहाँ से हुई? मेरी पोएट्री की जर्नी का 80% श्रेय मैं अपनी हिंदी अध्यापिका जो है श्रीमती श्रद्धा बख्शी, उन्हें देता हूँ, क्योंकि स्कूल्स में डिबेट कॉम्पिटिशन्स का बड़ा शौक था, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का। और जैसे कि आपने कहा कि एक दौड़ था जिसमें आप कवि की 4 पंक्तियों से शुरू करते थे। एक दफा मुझे याद है कि क्लास 7th-8th के आसपास हमें एक विषय मिला जिसका नाम था उत्तराखंड में बिजली उत्पादन। और ना तो किसी कवि ने उत्तराखंड पे इतने स्पेसिफिकली लिखा था कि बिजली उत्पादन उनकी कविताओं का हिस्सा हो। तो मैं बड़ा विचलित था, मैं इधर उधर काफी लाइब्रेरी में चक्कर काटे, फिर अपनी मैम के पास आया और मैंने कहा, मैम किसी कवि ने उत्तराखंड के बिजली उत्पादन पर कभी लिखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि शायद ये अवसर है कि तुम लिखो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी कविताएं लिखी नहीं। तो उन्होंने कहा दीपक 4 ही कविताएं, 4 ही पंक्तियां तो हैं, अगर तुम नहीं लिखोगे तो फिर मतलब ये बेकार हो जाएगा, तो तुम लिख दो। तो मैंने लिख दी 4। जब वो सुनाई उन्हें 4 तो उन्होंने कहा कि अब 4 लिख दी है तो 8 लिखो, और 8 लिख दी है हो तो 12 लिखो, और तब तक मत रुकना जब तक बात पूरी ना हो जाए। और वो सफर आज तक चल रहा है। तो मेरी हिंदी टीचर जो है श्रीमती श्रद्धा बख्शी मैम जो है, उनको मैं सारा जो है क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि क्लास में ऐसे बैठे होते थे हम, तो हमारी तरफ देखकर कहती थी कि कोई ओरेशन कंपटीशन हो रहा है तो हमेशा मुझे कहती थी ये कविता याद कर लो, जिंदगी में काम आएगी। तो मैं उन सब से कहीं ना कहीं बटोर कर लिखता रहता था। कई बार क्लास में पढ़ाने आती थी तो मुझे कहती थी कि अपने एग्जाम में कोशिश करना कि 6 नंबर के सवाल पर 10 नंबर का लिख कर आओ, और वो आखिरी जो के 4 मिनट हैं उन्हें इस्तेमाल करना बात कविता में कहने की। तो मुझे लगता है इतना प्रोत्साहन मुझे उनसे मिला कि आज जब मैं देखता हूँ अपनी कविताओं में तो मुझे वो विश्वास कहीं ना कहीं, एक जैसे आप कोट कर देते हैं किसी चीज को कि वो खराब ना हो, तो उनके विश्वास से मुझे लगता है एक कोट मेरी कविताओं पे मुझे नजर आता है। ये तो हम सब जान ही चुके हैं कि आप बहुत यंग हैं, लोगों को धोखा हो ही जाता है आपकी एज से। जी। आपकी पहली पोएम आपने कब लिखी? पहली कविता बहुत ही मुश्किल सवाल, क्योंकि पहली कविता जो थी वो तो मतलब मम 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 जम 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 टाइप की थी, क्योंकि मुझे लगता था स्कूल में कि, और ये एक धारणा थी कि अगर आप राइमिंग स्कीम नहीं फॉलो करते तो आप अच्छी कविता नहीं लिखते, है ना। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर आपकी कविताएं राइम नहीं करती सो आर यू रियली राइटिंग पोएट्री। तो उस स्टैंडर्ड से मेरी पहली कविता तो थी देयर इज अ कैट सिटिंग ऑन अ मैट ईटिंग अ रैट एंड दैट इज दैट। और मैं सोचता था वाह, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मुझसे मिलना चाहिए कि मैंने 4 पंक्तियों में इतना खूबसूरत जिसे है राइमिंग स्कीम लेकर आया हूं मैं। और फिर आप जब जिस तरह की कविताएं सुनते, क्योंकि मैं वाद विवाद प्रतियोगिता करता था, तो जम गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मतलब बहुत ऐसे उद्देश्य वाली कविताएं थी, जोश वाली कविताएं थी। तो मेरी भी शुरुआत की कविताओं का रंग इतना खौफनाक था कि मेरे माता पिता बड़ी घबराहट में जीते थे। एक मर्तबा मुझे याद है कि शादी में गए हुए थे और मैं बैठ के कविताएं लिख रहा था, तो जैसे ही वापस आए मेरी बहन जो है दौड़ते हुए गेट तक गई और कही कि आपका बेटा पागल हो गया है। जब माता पिता अंदर आए, उन्होंने कहा क्या हो गया, बड़ी बहन ऐसी क्यों बात कर रही है? तो मैंने कहा मैं तो बैठ के लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सुनाओ क्या लिख रहे हो? तो मैंने लिखा कि क्यों ना करे चोरी, क्यों ना तोड़े खजानों के ताले, रात को चूल्हे पे क्या अपना खून उबाले। तो उन्हें लगा कि मैंने दिल पे ले ली बात कि वो शादी पे चले गए और हमें डिनर खुद इंतजाम करना पड़ा।
तो और मुझे ये भी याद नहीं कि मेरे शब्द थे किसी और कवि के शब्द थे, क्योंकि मैं तो बस लिख रहा था। तो ये शुरुआती दौर की कविताएं थी। मेरी मदर जो कलम के फरीदाबाद रीडिंग में आई थी, वो बड़ी कहती आज थोड़ा सा मुझे बेटर फील हो रहा है कि तुम मतलब कम खून और खजानों की बात कर रहे हो। तो यहाँ से शुरुआत हुई उन पहली कविताओं की, और मुझे लगता है धीरे 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 रिश्तों पे मैंने लिखना शुरू किया और लोगों पे लिखना शुरू किया। और कहीं ना कहीं आई थिंक प्रोजेक्ट फ्यूल के थ्रू, जैसे 2016 में सीरियन रेफ्यूजीज के साथ मैंने बहुत काम किया। 90 दिन यूरोप के 5 देशों के रेफ्यूजी कैंप्स में बिताए, उन लोगों के साथ जो विस्थापित थे, और बहुत जीवन और जीवन की जो परेशानियां उनको बड़े करीब से देखा, मानवता को गुजरते हुए उनसे देखा, और उनका रंग कहीं ना कहीं इनमें उतारने की कोशिश की। तो अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के कुछ सुना सकता हूँ। ये एक नज्म है जिसका जन्म एक रेफ्यूजी कैंप में ही हुआ, और एक बहुत खूबसूरत यंग लड़का था जिससे मेरी बात हुई, और उसने मुझसे कहा कि मैं रेफ्यूजी तो हो गया हूँ, पर मेरे अंदर का राइटर अभी भी बहुत जो है जिंदा है। तो मैंने उससे कहा कि तो आप लिख रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है कागज और कलम खरीदने के। तो मैंने कहा कि मैं खरीद दूं आपके लिए? तो उन्होंने कहा क्या बात कर दी आपने, एक कवि के लिए सबसे बड़ी इज्जत तो यही है कि वो अपने खरीदे हुए कागज पर और अपनी कलम पर लिखे। और सीरिया से आते वक्त इस तरह के हालात थे कि स्मगलर्स जो थे उन्होंने उनसे कहा कि आप अपने बैग से सिर्फ एक चीज ले जा सकते हैं, और उनकी बैग में करीबन 550 पेजेस की मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनकी नॉवल की, और नॉवल का नाम था ऑन द टूम्बस्टोन ऑफ डेथ। और एक माँ की तस्वीर और एक मैन्यूस्क्रिप्ट, कुछ कपड़े और पानी की एक बॉटल, इनमें से उन्हें जो है डिसीजन लेना था। तो उन्होंने माँ की तस्वीर उठाई और मैन्यूस्क्रिप्ट पानी में फेंक दी। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, जो है अगर हुनरमंद भी चला जाए तो हुनर फिर भी हवा में रहता है। तो उसी से प्रेरित होकर ये एक नज्म है कि दीवारों से टपकती है गजल लिख, हर शेर पे वो शायर जुमले कसता है। दीवारों से टपकती है गजल एक, हर शेर पे वो शायर जुमले कसता है। चौक से लगकर पिछली गली में मलबे के नीचे पड़ा स्टेथोस्कोप धड़कता है। जो टिकाऊ कान उस पर कुछ देर तो अब भी सुनाई देंगी किसी की चढ़ती उतरती सांसें। शोर है तो बहुत, पर इतना नहीं है कि न सुनाई दे चौथे माले की यूसुफ मियाँ की बांसुरी। घर खाक हो तो हो, रियाज का वक्त है और वो जरा सख्त मिजाजी। धूल जो चखलो जरा तो फिरनी सा गुड़ होठों पर अब भी चिपकेगा। अलेपो का नजारा सोचिए कि जहां एक स्वीट शॉप, एक हलवाई की दुकान ध्वस्त हो गई है मिसाइल से। धूल जो चखलो जरा तो फिरनी का गुड़ अब भी चिपकेगा। यूं ही अशहर जान को जन्नत का हलवाई थोड़ी ना कहते हैं। हटाओ बिजली की नंगी तारें और ये टीन का शटर उठाओ। भर दो जल्दी से मामूल झोले में, मामूल वहां की एक मिठाई है लोकल। हटाओ बिजली की नंगी तारें और ये टीन का शटर उठाओ। भर दो जल्दी से मामूल झोले में, इससे पहले कि बेचे कमबख्त फिर से दुगने दामों में महंगाई ने। कल अलेपो पर गिरी एक और मिसाइल। शहर का आखिरी कवि, शहर का आखिरी डॉक्टर, शहर का आखिरी बांसुरी वादक, शहर का आखिरी हलवाई भी चल बसा। धमाकों से मिटाया जा सकता है लोगों को, उनकी अदायगी, एहसास, आवाजें, यादें कभी कोई मिटा सका है भला? यूं ही नजर झुकाए न बैठो, उठो चलो कि काम बहुत है। हुनरमंद गया है बस अभी, हुनर अब भी हवा में महकता है, हुनर अब भी हवा में महकता है। ये तो हम सब देख चुके हैं कि आप एक ब्रिलियंट पोएट हैं, बट ये ट्रांजिशन इनटू अ बॉलीवुड लिरिसिस्ट जी, ये कैसे हुआ? ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं स्कूल, मेरे घर से मेरा स्कूल करीबन 1.5 घंटे दूर था। स्कूल की बस में AIR FM रेनबो बजता था, और मुझे क्योंकि शब्दों से इतना प्यार था कि धुनों में बांधने का मन था। और ना तो कोई म्यूजिक डायरेक्टर जान पहचान का था, ना ही कोई बैंड था।
और ना ही कोई ऐसे सर्कल था जहां मैं जाकर कुछ गा सकता था। तो दो ऑप्शंस थे, एक मम्मी की कीर्तन मंडली, हमारे घर के बिल्कुल बगल में देहरादून में मंदिर है, तो मैं कीर्तन मंडलियों में जाकर एक्चुअली बड़ी अच्छी पंजाबी आंटीज के साथ अपने लिरिक्स ट्राई करता था, हालांकि वो सिर्फ स्पिरिचुअल अलाउ करती थी। और दूसरा, स्कूल की बस में रेनबो ARFM रेनबो पे जो पहला गाना बजता था स्कूल बस में, मैं उसे उठा लेता था। और ये आप सबके लिए मेरा ट्रेड सीक्रेट है, गाने लिखना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही दुनिया में कोई ऐसा स्कूल है जहां आपको एक गीतकार बनना सिखाया जा सकता है, आपको गायक बनना सिखाया जा सकता है, आपको एक वादक बनाया जा सकता है, पर धुनों में शब्दों को पिरोने की जो कला है वो आपको खुद ही सीखनी पड़ती है। तो जब स्कूल जाते हुए गाना बजता था बस में, तो मैं पहले उस गाने को उठा लेता था। अगर आप किसी भी गाने को उठाएं और उसके शब्द हटा दें तो आपको मिलती है एक नायाब धुन, और आप उस धुन में अपने शब्द पिरो सकते हैं। तो हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और साल दर साल मैंने इतने गानों में अपने शब्दों को पिरोया है कि जब मुझे माझी द माउंटेन मैन में केतन मेहता जी ने पहली फिल्म का न्योता दिया, तो मुझे लगा वही करना है जो मैं स्कूल बस में करता था, आंखें बंद करके बस धुन में शब्द पिरोने हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे स्कूल की बस में जाते हुए, आई रिमेम्बर क्लास 10th या 11th की बात है, गाना बजा पहला नशा, आप सबने सुना होगा, बड़ा खूबसूरत गीत है। और गाना कुछ इस तरीके से है कि पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल। पर अगर आप शब्द हटा दें और सिर्फ गुनगुनाएं तो धुन बजती है तरराररा 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 तरराररा। तो अगर आप एक गीतकार बनने की चाह में लिखेंगे, तो मैंने लिखा कि दिल ने कहा, दिल ने सुना, जो था कहा आसान कहा, कह के भी जो ना सुना और सुन के जो ना कहा, मेरे खुदा पहला नशा, पहला खुमार, और आप कुछ भी कह सकते हैं। और इस तरीके से काम करते 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 कहीं अंदाजा नहीं था, ना ही फिल्मी जगत से कोई जानता था मैं किसी को या कुछ परिचय था, पर यह था कि हाँ होमवर्क कर लूं, कभी जीवन में मौका मिले तो शायद इसे इस्तेमाल कर पाऊं। और बेशक जब पहली बार केतन मेहता जी ने आप ही की तरह जब पहली बार मिले, तो उन्होंने मुझसे आए स्टूडियो में और मुझे एक कोने में बैठे हुए देखा, और संदेश शांडिल्य जो बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक डायरेक्टर है, उनसे कहा कि हमारे लिरिसिस्ट नहीं आए अभी तक। तो उन्होंने कहा सर यही है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि मेरी कहानी जो है माझी द माउंटेन मैन की, एक ऐसे इंसान की है जो 22 साल से प्यार में बिल्कुल निचोड़ कर अपने आप को एक पहाड़ तोड़ रहा है। तुमने सच्चा प्यार भी किया है क्या? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर वो जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकता, पर मैं आपको ये जवाब दे सकता हूँ कि मैं कोशिश कर सकता हूँ एक 22 साल के इंसान के पहाड़ तोड़ने की बात कहने की। तो उन्होंने मुझे वो मौका दिया और कहीं ना कहीं उस चीज को मैंने गाने में उतारा। जी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस को बीच में थोड़ा जोड़ना चाहूँगी, बिकॉज मैं बॉलीवुड में इतना काम कर चुकी हूँ, ये मुझे पता है कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है। जी। उनको एंटरटेनमेंट से समझाना और कविताओं के माध्यम से समझाना दो बहुत अलग चीजें हैं। जी। आपको कोई डिफिकल्टी लगी इसमें? देखिए मुझे लगता है सबसे गीत लिखने में तो कभी डिफिकल्टी नहीं लगी, सिर्फ एक बार जब अमिताभ बच्चन जी के लिए गाना लिख रहा था, अतरंगी यारी जो गीत है, क्योंकि फिल्म की कहानी थी कि आप दो दोस्तों पे गाना लिख दीजिए। गाना लिखा, पहला मुखड़ा, अगले दिन उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर जी जो हैं वो गाने वाले हैं, तो मैंने पूरा गाना काट दिया, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के लिए गाना लिखना मतलब आपको सारी हिंदी बुलानी पड़ती है गांव कस्बों खेमों से सारी हिंदी बुलानी पड़ती है और फिर गाना जो है आप लिखें। तो जब उन्होंने वो गीत गाया अतरंगी यारी, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रिटायर अगर मैं हो भी जाऊं तो भी अच्छा है। और हाल ही में उनके करियर के टॉप 10 अमेजिंग मोमेंट्स और अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस में अतरंगी यारी को फीचर किया गया। तो मुझे बहुत इस बात से मतलब गर्व होता है कि मैं गीत से जुड़ा हुआ हूँ। बात रही गीतों या कविताओं के मुश्किल होने की, तो मुझे लगता है कि वो बात सच नहीं है। जो बात मैं आज कह रहा हूँ वही बात पंजाब में किसी ने 1932 में या बिहार में या कानपुर में कही है।
अगर आप सुने, एक आपको मैं कविता सुनाता हूँ और एक गीत बताता हूँ, आप सबने शायद से सुना भी होगा और पसंद भी करते होंगे। गीत एक तरीके से है कि आपने सुना सानू नहर वाले पुल तो बुला के रह गया। तो गीत है कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही किथे रह गया। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उते जोर चन्ना नहीं चलदा। आवा ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, चन्ना वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा। ओ सारे पैरां विच बेड़ियां पाके, ओ सारे पैरां विच बेड़ियां पाके ते खोरे माही किथे रह गया। अब इसी गीत का रंग देखिए कि फिर से साल के 365 दिन बिना तुम्हारे निकल गए हैं। फिर से साल के 365 दिन बिना तुम्हारे निकल गए हैं। वक्त की गहरी खाई में 12 महीने फिसल गए हैं। होते हैं एक अकेले इंसान को कितने काम आओगे तो जानोगे। खाली घर काटने को दौड़ता है मेरा यकीन कब मानोगे। तुम होते तो कहती तुमसे छत से बारिश उतार लाओ। आंगन में धूप बिछाओ, कमरे की दीवारों को हवा लगा दो। सीलन चढ़ गई है घड़ी को मरम्मत करवा दो। झाड़ दो खिड़की की धूल, मुंडेरों को सींच दो। चुपता है तहखाने का अंधेरा, मेरे लिए आंखें मींच दो। हो सके अगर तो इस चांद की पलकें ढक देना, या बहाना नया बनाकर मुझको फिर से कोई खत लिखना। मैं खत के पन्ने पलट पलट कर फिर से सारे दिन गिनूंगी। गुजर गया है एक और साल तुम्हारे बिन, सोच के तुमको याद करूंगी, सोच के तुमको याद करूंगी। थक गईया पानियां नु पुण पुण के, गला इस दिल दियां सुन सुन के। एंड देन द होल सॉन्ग गोज एंड कंटिन्यूज। बट आप देख रहे हैं कि कितने साल पहले किसी फोक में वही दर्द। अब आप ले लीजिए, बिहार से एक बहुत खूबसूरत सा गाना है 1932 में, राम नरेश त्रिपाठी जिन्हें लोकगीतों के संकलन का श्रेय जाता है, उन्होंने गीत लिखा कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन हाय, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौनटी कसवा से संयमोर जइबे, गुइया जइबे सैया जइबे। जौनटी कसवा से संयमोर जइबे, पानी बरसे टिकस गल जाए रे। जिस प्लेटफॉर्म से जाए इतना पानी बरसे गल जाए। जौन सहरवा को संयमोर जइबे, सैया जइबे गुइया जइबे। जौन सहरवा को संयमुर जइबे, आगी लागे सहर जल जाए रे। जौन साहबवा के संयमुरे नौकर, गोली दागे साहब मर जाए रे। ये बात 1940 1932 तक गाई गई है। और अगर आप गीतों में पढ़ें देखें तो आपको एक बहुत आज की बात भी इंसान वही कह रहा है जो बहुत पहले किसी ने लोक गीत में या किसी बोली भाषा में कही। तो मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत सा जैसे शेर है, एक रात, साकी फारूकी साहब का है कि एक रात हमें ये कह के छोड़ गई रोशनी, तुम अपने चिरागों की हिफाजत नहीं करते। और मुझे लगता है कि वो जो जज्बात हैं जो इतने सारी जनरेशन इतने सालों से आए हैं, वो चिराग हैं जिन्हें हमें महफूज रखना है। तो दायित्व ये नहीं है आज के कवि में कि आप एक नई बात कहें, बल्कि दायित्व ये है कि आप पुराने ही भाव को कितने नए अंदाज में कहें। और ये मुझे लगता है कि पगडंडी है एक जंगल में सफर को पार करने की। आई थिंक एक लेसन हम सब यहाँ सीख गए हैं, माध्यम बदल सकता है, जड़ें वही रहती है। आई थिंक आप नोटिस कर रहे हैं कि हर चीज घूम फिर के इस किताब पे आ रही है। कैन वी गिव वन कॉपी टू एवरीबडी प्लीज? I actually would love if we can read one poem together. कभी ऐसा नहीं होता पर मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना अमृतसर से शुरुआत की जाए। पूरे साल घूमते फिरते मैंने सोचा कि मैं ही पढ़ता हूँ। आप सब बहुत बढ़िया। मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ।
चलिए, कभी मैंने किया नहीं ये पहले कोशिश, पर साथ में करेंगे तो शायद नया लगे और अच्छा भी लगे। आसान कविता चुनता हूँ पढ़ने के लिए। कि सारे खेल खेल कर, बुरे भले सब दर्द झेल कर, डूब डूब कर उभर उभर कर, जीत जीत कर हार हार कर, फुर्सत की दो घड़ियों में जब इस दिल ने सांस ली, जीवन की सच्चाई सारी जान ली, मान लिया कि कभी खुशियां बनकर लम्हों को गुदगुदाती है, कभी गमों की बाह पकड़ लचकाती है, जिंदगी कितना कुछ सिखाती है। सोनी सहमी रातों में चाहा के दिन साथ चले, कभी भीड़ में गुम हो जाता, कभी तन्हाई का जश्न मनाता, मन ही ये मन को समझाता, कभी पल भर में मंजिलों तक पहुंचाती है, कभी एक ही मोड़ 100 दफा दोहराती है, ये जिंदगी है। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। आपकी Question answer session with all of you. How old was that? he was 18 years old. Okay. 18 and a half. जी. I am amazed how good you are. Thank you. You've inspired me to read Hindi poems again. I had this little streak in me to write when I was really young, but I left it because nobody encouraged it. So this is amazing. I'm so glad I came and I met you. Your book is fabulous and I'm actually going to read it. Thank you so much. Really, thank you मेरे so लिए much. इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑथर्स, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप शुरू भी करना चाहें तो आप पढ़ना शुरू करें। एक जिंदगी काफी नहीं लगेगी आपको पढ़ने के लिए। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। I'd like to add something to that. शिवांगी, ऐसा ही कुछ इंस्पिरेशन इन्होंने एक और लड़की के साथ किया था। इन्होंने एक पीस ऑफ मिरर उसे दिया था। आप यहाँ जलंधर में, बिल्कुल। आप वो स्टोरी प्लीज बताइए। 5 साल पहले जलंधर में पढ़ाने आया मैं, और 3500 बच्चों को पढ़ा रहा था 6 दिनों के अंदर। जलंधर, फिरोजपुर, कपूरथला, ब्यास और अमृतसर जो था, ये शहर थे। और जलंधर में एक दिल्ली में किसी एक औरत ने मुझसे कहा था कि अगर आप आईने में आपका चेहरा आपको हर सुबह सरप्राइज करता है तो आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो मैंने बड़े छोटे छोटे आईने जो हैं, टुकड़े, वो यहाँ जलंधर में एक नर्सिंग कॉलेज में लड़कियों को बांटे और कहा कि अपने चेहरे को अब आप 4 मिनट तक देखें और 40 नई चीजें ढूंढें इतने छोटे से एक आईने में। और एक लड़की ने उस आईने की एक्टिविटी खत्म होने के बाद मुझसे कहा कि मुझे पहली बार अपनी मुस्कुराहट से प्यार हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि ये बड़ी अजीब सी बात है, इंसान तो हमेशा स्माइल करता ही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल में मुझे कहा जाता था कि आपकी स्माइल आप पर अच्छी नहीं लगती। तो मैंने एक्चुअली मुस्कुराना छोड़ दिया, और आज मैंने इस आईने में अपनी मुस्कुराहट को 4 हिस्सों में बांट कर देखा, और फिर दूर ले जाकर आईने में ये हिम्मत जुटाई कि मैं सच में हंसते हुए अच्छी लगती हूँ। और जब मैं वापस उनसे कभी जुड़ा 2-3 महीने बाद, तो उनकी जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने कहा आप विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी शादी में गए हुए थे और हमारी डॉटर इन लॉ को किसी ने कहा ये तो बड़ी हंसमुख चेहरे की डॉटर इन लॉ है। तो हमें परिवार से एज अ कलेक्टिव फीट महसूस हुई। मुझे पावर बॉम्ब हो जी। तो ये आया कहाँ से? जीन्स कहाँ से आई आप में? हाँ, जीन्स, मुझे लगता है मेरी नानी जो है, उनकी छत्र छाया, उनका रंग हमेशा से रहा। गढ़वाली में एक शब्द है, हमेशा बचपन से सिखाती थी कि देखो, गढ़वाली में एक शब्द है खुद। जब कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं आई मिस यू, गढ़वाली में कहते हैं कि मुझे तुम्हारी खुद लग रही है। और खुद जो है एक ऐसा शब्द है जिसका ट्रांसलेशन कहीं भी दुनिया की किसी भी भाषा और बोली में नहीं है, क्योंकि खुद का किसी की खुद लगना इज नॉट जस्ट मिसिंग देम, इज एक्चुअली आप खुद को भुलाकर किसी और को इतना याद कर लें कि आपके अस्तित्व में वो इंसान समा जाए। तो नानी कविता कहती थी? नानी कविता तो नहीं कहती थी, पर ऐसे छोटे छोटे शब्द कहीं ना कहीं कान में डालती रहती थी। और मेरी मदर जो है वो गढ़वाली के बड़े खूबसूरत जो आपके मुहावरे हैं वो पढ़ती रहती थी, मतलब कहती रहती थी अपनी भाषा में, हमें थोड़ा सा डांट वाट लगाने के लिए। तो डांट का तो ज्यादा असर नहीं पड़ा, मुहावरे का ज्यादा असर हो गया और वो अब कविताओं में ढल गया। और आज मुझे लगता है कि अगर मैं पलट के देखूं तो
सबसे बड़ा योगदान मेरी जो बड़ी बहन है उनका भी था, क्योंकि जब मैं लिख रहा था कॉलेज में या अब भी, हर एक कविता को इतने ध्यान से वो सुनती हैं आज कि मुझे लगता है कि आई हैव एन एडिटर एट होम, तो आई गेट वेरी मच इंकरेज कि मैं कुछ लिखूं और उनको कॉल करके सुनाऊं, तो कहते हैं दीपक दिस इज ओके ओके। यानी ये ऐप सिर्फ आप ही में आया कि आप कविता कहते हो। जी थैंक which you have written, जी and the eloquence, the way you speak is so very beautiful, and the humility that you have is something that many of us can emulate and learn from. So it's been a beautiful experience being here. Thank you so Thank you much, so ma'am. much for coming to us. Thank you. My pleasure. Deepak, I'm going to be slightly selfish here and ask a question that's relevant to maybe the younger audience here. Yes. So what I really want to ask you about is, you started Project Fuel as a 17-year-old, and I imagine you had certain outlook on life, and now you've met 200,000 people and 200,000 life lessons. Has that outlook changed? Is that same energy and drive to keep going? And well, how has that changed? You've gotten into Bollywood. What is your view on life, and what keeps you awake at night now? Not much has changed except the fact that my love and appreciation for people has increased much more. You know, I've come to realize the things that we hear in the news, the protests, the fights, the murders, the terrorist attacks, are only an exception. And this is again I learned as a life lesson from people. The norm is that people actually are genuinely good. But on Facebook, in the media, in the newspapers, we only report the 2% that is bad. And when we start considering that 2% the reality of the world, we become cynical. And the problem with being a young cynic is you go from knowing nothing to believing nothing. आप बिना जाने दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और आप बिना समझे दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. So were you more cynical back in the day, or I think more, I would say I was more naive. naive? I was more naive. I thought that, you know, people were, yes, they would not accept, or they would not, you know, come about accepting. Taking life lessons from a 17-year-old has to be like the cut-off point for the world, right? क्योंकि मैं जाता था पढ़ाने तो लोग कहते थे you're 17, you teach human wisdom and life lessons. I mean, all of them are wrong in the society box. 1 month ago, my work was nominated and awarded as World's Top 100 Innovations in Education. Earlier this year, I was appointed the Kindness Ambassador to UNESCO MGIP. And when I think of that, I like to believe that the world is a good place. So that's point number 1. The other amazing important thing I've learned about myself and people is, you have to learn to own your story. I was so heavily bullied in school for my voice. मेरी आवाज़ के लिए इतना मुझे मतलब किया कि I actually stopped going to school because I didn't want to sound like a girl or a child. But having lived through that time, I started to accept myself, and now my lesson for everybody is, when you enter any room, own your story. Own the parents you have, own the place you come from, or own the language you speak. And when you come in, people only see one person, but actually behind me are 2,000 people who have complimented me, who said, oh, you speak so well, or I'm going to read because of you. I bring all of them with me. I call them my extra luggage that I don't have to pay for. And I make them stand behind me in this chair, and then whenever I need to reach out, I will actually pull that incident and serve. So when you own your story, you actually own everyone who's come before you and said, I will survive so that this child or this person can grow. Think of your father, then your father's father, your mother's mother, then their parents. Anywhere in the generation, someone could have stopped and said, जिंदगी बड़ी मुश्किल है, नहीं जी सकते. पर क्योंकि उन्होंने कहा जिंदगी मुश्किल है पर चलो निभा लेते हैं, शायद अगली पीढ़ी को सुख मिले. फिर दूसरी पीढ़ी ने कहा चलो अगली पीढ़ी को सुख मिले. All of them survived. And Africa में there is a beautiful saying, we wear the crown that someone else paid for. So when I sit in this chair, I actually sit with the acknowledgement that my crown is already paid for. All I have to do is wear it and speak of it. If I may get one more question, one last question. I actually found a lot of parallels
between what you were saying and in my own personal life. I was a very philosophical kid, like since back in school. And then how life went ups and downs, a lot of downs. So now it took a while to come out of it. So I'm going back. It's only lately that I feel I'm going back to the philosophies, you know, to all the goodness or the positive things that I believed in as a kid. So when you were saying all the, whatever you were talking about, it resonated a lot with me. And what I would like to talk to you about is if we can associate with fuel. Because as you said, all these protests, all this whatever mass media, it's because WhatsApp and Facebook are being used to manipulate and corrupt people. People are essentially good. But people deep down are afraid. What all this is doing is, all political forces, they are just trying to exploit that fear. And if you start at the ground level, if you talk to somebody, to tell them to let go of this fear, to it's very easy to get blinded, but it's very difficult to be fooled by your hearing. So it's more important to focus and listen on what is exactly right. You know, I'm an ENT surgeon and I believe that hearing is the most important of all your senses. Absolutely. Even more than vision. Even more than vision. So what I'm trying to say is if it's possible to get associated with it, because it is important to be, link it to social activism. Absolutely. And my short and quick answer to that is absolutely. 2020 में our vision for Project Fuel, and in fact with Prabha Ketan Foundation and people like you, I think what I really want to achieve is to collect 1 million life lessons by 2020. कितने हो गए? मैम मैं तो zero सोच के चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा ही हो. But ये है कि if we are able to collect 1 million life lesson, I want to turn them into free curriculums, open source curriculums for educators, for poets to write more. Imagine अगर आप सोचिए कि आपको Syrian refugee, आप हर इंसान नहीं जा सकता refugee camp, but if you're made available to those stories, you can actually feel inspired to write exactly at your home, and that also adds to the power. So my goal for 2020, 31st December, is to collect 1 million life lessons from people all around the world. Please help us with that. Thank you. And I never like to end a Kalam series with just a question, so I'm going to read 2 lines so that we still retain poem. And on that note, the last जो एक नज़्म है उसकी थोड़ी सी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ वक्त को ध्यान में रखते हुए कि अंधाधुंध मुसीबतों से सना हुआ संजीदा एक गम, अंधाधुंध मुसीबतों से सना हुआ संजीदा एक गम, ख्यालों में आजाद शब्दों की गिरफ्त में एक नज्म, यादों की वीरान गली में पीछा करता पुरानी पहचान का साया, एक खेल जिसमें जितना जीते हम उससे कहीं ज्यादा गवाया, सख्त हाथों और नर्म दिलों की कश्मकश, झूठे दिलासों का तसव्वुर, एक चुपता हुआ सच, दबी दबी सी मुस्कुराहटें, बेझिझक चीखता हुआ डर, बड़े खामखा हैं इसके झगड़े, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है मगर, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है मगर. Thank you everyone. Thank you everyone. Very own Akansha Arora. I now request Neetu Duaji to please come up and extend appreciation for Deepak Ramola ji for sharing with us his desire to live and learn from other stories and life lessons with a small memento. I've come from Jalandhar, and the aura around you is amazing. Like, I can sit here and listen to you all night. Thank you so much. It's been wonderful. Thank you. And it's hard to express, but I'll just say a line for you. Sure. And I think it'll express, and I'm going to start writing. The first time I ever wrote a poem was when my grandmother passed away, and I don't know how that happened. Like how you said, genes, just... So she is a poet, and that's how I wrote a poem. And I'm going to continue to get inspired by you and write something. But can I say a line? Sure. Tu jo mila, chand khila, aaj naya rang chhane laga. So this is a new rang. I'm going to start writing. Dainik Jagran and the Tribune.
The event wouldn't have been possible without your support and cooperation. Thank you. Please collect your books from the table and get them signed by Deepak ji. I think we all have it already.